جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین خبریں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں، کچھ تنقیدی تبصرے، ہمیشہ کی طرح میں بتاؤں گا کہ کیسے عاحق علی کو پولیس نے عاحق علی کی آنکھیں پھوڑ دیا اور وہ بیان دے رہا ہے۔ صلاح الدین کا کیرلا میں قتل ہو جاتا ہے ہندوتوا گنڈوں سے اور اپنے آپ کو کچھ سیکولرسٹ ماننے والے لوگوں میں سے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ترکش ایئر اسپیس انڈسٹریز نے کس طرح سے ریسرچ ڈیولپمنٹ کا بجٹ دگنا کر دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں بتاؤں گا کہ منور رانا کی بیٹیوں کو آخر کیوں نظر بند کر دیا گیا گھروں میں ہی یوگی حکومت کے زیر نگرانی، اور ہندوستان کا سب سے بڑا کووڈ کیئر سینٹر بند ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ نرسمہا راؤ جو بابری مسجد کی شہادت کا ملزم تھا، اس کو آخر بھارت رتن کی قرارداد دینے کی کیا ضرورت پیش آئی، جس پر اس وقت بحث جاری ہے۔ اسدالدین اویسی نے اس پر کیا کہا، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو حال ہے ملک کی معیشت کا، اس پر کانگریس نے کیا تبصرہ کیا ہے تنقیدی، وہ بھی ہوگا۔ اور دبئی میں دھوکہ دہی ملازمتوں کے نام پر رقم اینٹنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ سعودی عرب جمال خاشقجی کے قاتلوں کو سزائے موت نہیں بلکہ قید کی سزائیں دی گئی ہیں، عمر قید کی، وہ بھی بات ہوگی۔ اور بہار اسمبلی الیکشن کے آمد کے موقع پر چراغ پاسوان اور جے ڈی یو کی درمیان خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور جے ڈی یو نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اکیلے الیکشن لڑنا چاہتے ہو تو لڑے۔ ساری چیزیں رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بیک ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اس نوجوان کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں جو اس وقت آ رہی ہے کیرلا سے۔ اس نوجوان کا نام صلاح الدین ہے اور کیرلا کے علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور آج بری طرح سے اس پر اٹیک کر کے تیزدھار ہتھیار کے ذریعے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ سنگیس جیسے کچھ سیکولرسٹ کی جانب سے یہ مرڈر ہوا ہے، اور لیکن کوئی بھی مخصوص آرگنائزیشن کے خلاف نہ پابندی کی بات کر رہا ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا پرائم ڈیبیٹس ہو رہا ہے، نہ یہ پولیٹیکل مرڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ سوشل مرڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مسلمان ہونا ایک قسم کا گناہ ہو چکا ہے، اس طرح کہتے ہوئے اس خبر کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آنا باقی ہے۔ تازہ تصویر جو آئی ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح ناظرین، میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں اس وقت، بلکہ آواز کے ساتھ سناؤں گا بھی میں۔ یہ ویڈیو آ رہی ہے یو پی کے گونڈا سے، اس کا نام عاحق علی ہے۔ یہ اس میں بیان دے رہے ہیں کہ کس طرح پولیس نے اس پر حملہ کر کے اس کی بائیں جانب کی آنکھ کو زخمی کر دیا ہے، اور بنا وجہ پولیس گھروں میں گھس کر کے مسلمانوں کو اور دیہاتیوں کو مار رہی ہے۔ وجہ کیا ہے بتایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ آپ ویڈیو تھوڑی سی سن لیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیوں اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف دیہاتوں میں وہ پولیس ہو یا ہندوتوا کے گنڈے ہو، کیوں اس قدر ظالم بنتے جا رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا۔ افسوس کا مقام، جیسے میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں کہا، یہ ہے کہ قیادت سوئی پڑی ہے۔ ہم کچھ آواز کے ساتھ یہ ویڈیو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہم وہاں سے لیٹرنگ کرنے جا رہے تھے، ادھر سے لوٹ کے آ رہے تھے تو کچھ لوگ جوا وہاں کھیل رہے تھے، اسی میں اچانک پولیس آ گئی۔ پولیس میں ان لوگ بھاگے، پولیس والوں نے وہ جو بھاگے جوا کھیلنے والے وہ ہماری ہی طرف بھاگے، انہیں میں ہمیں سمجھ گیا کہ یہ لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ اسی میں ہمیں ہمارا بال پکڑ کے پیچھے سے وہاں وہ تار گھیرا ہوا تھا کھیت میں، اسی تار میں اسے گھسیٹ دیا، ہمارا پوری آنکھ پھٹ گئی۔ کٹیلے والے تار تھے؟ ہاں، کٹیلے والے تار تھے سر۔ آپ نے کہیں شکایت کیا اس کی؟ جی سر، شکایت کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، گاؤں میں پورے چھاپے پڑ رہے ہیں، سب کو گھر میں گھس کر مار رہے ہیں پولیس والے۔ پولیس کیسے گئی تھی پہلے؟ پولیس سادی وردی میں گئی تھی، 3 لوگ گئے تھے، 1 لوگ بلٹ سے تھے، 2 لوگ گاڑی سے تھے۔ اس کے بعد میں 1 لوگ بنے یادو نام کا وردی سے آیا، وہ بھی اسی میں پکڑا سب کو، مطلب پکڑ رہا تھا
तभी गांव वालों ने उन पर हमला किया तो वो छोड़कर भागे। उसके बाद में पूरी फोर्स बुलवा के पूरे गांव में एक एक घर में एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के घसीट कर मार रहे हैं। कौन सी पुलिस की है? ये यहाँ पहले तो यहाँ पाड़े चौकी की पुलिस आई थी हमारे वहाँ। आप लोग हमारा वो जो हमें मारा वो शादी वर्दी में था, उसका तो नाम पता नहीं हमें। अभी कहाँ आए हैं आप लोग? अभी हम जिला अस्पताल आए हैं सर। हमारे भाई के मारी जो पुलिस वाले क्या हुआ? वहाँ से जा रहा था, जुआ हो रहा था, आ गया था लेटरिन करने के लिए और वहाँ से आया तो भी भागा उसी में और पकड़ के लिया, बस वही तार में घसीट के रगड़ खूब मारे नहीं साहब। क्या हुआ है? इसके लिए हमारे भाई को खूब मारा है। तो क्या आँख में चोटें आई? हाँ, आँख में चोट आई, पूरी आँख की पर्दे फट गई साहब। देखिए बिल्कुल हम 1.5 घंटा से परेशान है, कोई हमारा सुनवाई होने वाला ही नहीं है। हम गरीब आदमी कहाँ जाए साहब? कहाँ शिकायत किया है आपने? हम कहीं कोई सुनता नहीं, कहाँ लेके जाए। कहाँ आए हैं इस समय आप? अब इस समय आए अस्पताल में। नाज़रीन गिरामी, तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्रीज से खबर आ रही है कि उसने रिसर्च डेवलपमेंट का बजट इस वक्त दुगना कर दिया है। दिफाई आलात और साजो सामान तैयार करने वाली तुर्की के सरकारी इदारे तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बढ़ा करके 3 अरब तुर्किश लीरा कर दिया है, जो बहुत बड़ा बजट बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी जदीद ड्रोन तैयारी, फिजाई दिफाई निज़ाम भी बना रही है और अलग अलग किस्म के हथियार बना करके मुल्क की हिफाजत के लिए और कौम की हिफाजत के लिए तुर्की पूरी तरह से मुनज़्ज़म होना चाहता है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं पड़ोसी ममालिक की जानिब से तुर्की के, यही वजह है कि इस वक्त दिफाई सिस्टम के बजट को दुगना कर दिया गया है। ये कहते हुए जो है एक ताज़ा तरीन ऑफिशियल रिकॉर्ड बयान जारी कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मुनव्वर राना की बेटियां सीएम योगी के लिए क्यों दर्द सर बन गई हैं। उज़्मा और सुमैया ने सीएम योगी की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा करने का मंसूबा बनाया था। उनके साथ बड़ी तादाद में योगी हुकूमत से नाराज दीगर खवातीन भी पहुंचने वाली थी और ताली थाली पीटने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन जो है वो नाकाम हुआ है। मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना आजकल एक सुर्खियों में भी थे। आपको पता है कि उलमाए किराम को जो है गलत सरत कहने और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने की वजह से ये थोड़ा बदनाम भी हुए कुछ दिनों से और अभी तक चल भी रहा है। अब इनकी बेटियां इस वक्त सुर्खियों में आ गई हैं और वो ये है कि इस वक्त योगी हुकूमत ने, यूपी पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया है। घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मुनव्वर राना की बेटियां उज़्मा, परवीन और सुमैया राना के कहीं आने जाने पर पाबंदी तो है ही, अगर उनसे कोई मिलने के लिए भी पहुंच रहा है तो उसे सख्त जांच और पूछताछ के मराइल से गुजरना पड़ रहा है और फिर वापस होना पड़ रहा है। दरअसल उज़्मा और सुमैया ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइश के बाहर मुजाहरा करने का मंसूबा बनाया था। बड़ी तादाद में खवातीन भी उनके साथ शरीक होनी चाहती, जो नाराज़ थी हुकूमत से। ताली और थाली पीटने का भी मंसूबा था। दोनों बहनों ने रियासत में खवातीन के तय बढ़ते जराइम और कोविड इन्फेक्शन को रोक पाने में नाकाम रियासती हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करने की तैयारी में थी, इसीलिए उनको नज़रबंद कर दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं। बताया जाता है कि बाकायदा सुमैया राना ने पीर के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पैगाम भी डाला था, जिसमें कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खवातीन 5 कालिदास मार्ग पर इकट्ठा हो ताकि वज़ीर आला की आदित्यनाथ के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया जाए। ये खबर जैसे हजरतगंज पुलिस को मिली, फौरन उन्होंने मुनव्वर राना की दोनों बेटियों को एहतिजाजी मुजाहरा न करने के लिए नोटिस भेज दिया। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मुजाहरा मंगल के रोज 2 बजे होना था, लेकिन इससे पहले उज़्मा और सुमैया के घर पर पुलिस फोर्स तैनात हो गई। LIU को भी अलर्ट किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि उज़्मा और सुमैया के अलावा भी कई खवातीन को हाउस अरेस्ट यानी घर में नज़रबंद कर दिया गया है। बैकअप नाज़रीन, योगी हुकूमत की नाकामियों को लेकर के एहतिजाज करना चाह रही थी, तो एहतिजाज से पहले उनको नज़रबंद कर दिया गया। इस वजह से इस वक्त वो सुर्खियों में छाए हुई हैं। नाज़रीन, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वाक़ 10,100 बेड की सहूलत वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर CCC बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर BIEC मरीजों की कमी के सबब 15 सितंबर से बंद हो जाएगा। बेंगलुरु सिविक बॉडी ने यह फैसला कोविड केयर सेंटर के टास्क फोर्स के सरबराह राजेंद्र कुमार कटारिया के जरिए मशवरा दिए जाने के बाद लिया है। इसके पहले उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के साथ तबादले ख्याल भी किया था। बहुत जोरों शोर के साथ शुरू हुई इस सहूलत में पुलिस निगरानी के तहत लॉकडाउन के दौरान कुछ वक्त के लिए मुहाजिर मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया था। बड़े कन्वेंशन के लिए खरीदे गए फर्नीचर और बेड हुकूमत और यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों को दिए जाएंगे, ये बताया जा रहा है।
नाज़रीन, समाजी फलाही महकमा अपने हॉस्टल के लिए 2500 सीट फर्नीचर इसको मिलेंगे और बागलकोट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, अक़लियती फलाह महकमे के हॉस्टल और GKV के हॉस्टल को 1000 फर्नीचर्स दिए जाने की बात की गई है, जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ख़रीदे गए थे। गौरतलब बात यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वबा का फैलाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर कोरोना के 75,809 नए केस सामने आए हैं और 1,133 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें आधे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की मजमूई तादाद 43 लाख के करीब पहुँच गई है। 72,775 लोग अब तक इस इन्फेक्शन से हलाक भी हो चुके हैं। लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं मरीज और उसमें शिफाया पाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ती जा रही है और बेंगलुरु में भी इस वक्त मरीजों की तादाद दिन ब दिन कम होते हुए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जो खुशाइंद खबर है। नाज़रीन, नरसिम्हा राव, इसका नाम आप जानते हैं, शख्स को भी पहचानते हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम में, शहादत में सबसे पहले जो बड़ा नाम सामने आया मुख्तलिफ लीडरों के नामों के साथ, वो एक नाम था PV नरसिम्हा राव। अब इनको भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना असेंबली में करारदाद पेश की गई है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश की है, तो उसके बाद से ये मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ये करारदाद पसंद नहीं आ रही है। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत में PV नरसिम्हा राव का रोल रहा है और जिस तरह नरसिम्हा राव तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने की जिम्मेदार हैं, इन हालात में मजलिस ऐसी किसी भी करारदाद का हिस्सा बनना नहीं चाहती। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि 1984 की सिख मुखालिफ फसादात में भी नरसिम्हा राव खामोश तमाशाई बने देखते रहे, जबकि हज़ारों सिखों को मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि मजलिस की पॉलिसी शुरू से यही रही है कि नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत के बराबर की जिम्मेदार थे, इसलिए मजलिस इस करारदाद का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। इसलिए मजलिस ने इस करारदाद को पेश किए जाने के दौरान असेंबली की मुकम्मल कार्रवाई का बायकाट किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस का इब्तिदाई से मौक़िफ़ रहा है कि जिस शख्स ने बाबरी मस्जिद की शहादत करवाई, उसके ताल्लुक से मजलिस ने उसकी रवैये पर एहतिजाज किया और उसके लिए 15 फरवरी 2005 को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में भी अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर मजलिस ने एक तवील तकरीर करते हुए नरसिम्हा राव की फ़िरका परस्ताना ज़हनियत को असेंबली में आश्कार किया और इस करारदाद की मुखालिफत भी की थी। उन्होंने कहा कि वही वज़ीर आज़म थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में फ़िरका परस्त तंजीमों को खुली छूट दे रखी थी। नरसिम्हा राव ने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और कौमी यकजहती कौंसिल में यकीन दहानी करवाई थी कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत होगी, ताहम हिफाजत करने के बजाय वो खुद उसकी शहादत में मुलव्वस रहा और उसको इस तरह से इस वक्त भारत रत्न देने के करारदाद को पेश करना सरासर नाइंसाफ़ी है, ये कहते हुए जो है इस वक्त इसकी पूरी तरह से मुखालिफत की गई है। नाज़रीन, डूब रहा था रोम तो नेरो बंसी बजा रहा था और हिंदुस्तान डूब रहा है तो मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे हैं, ये बयान आया है कांग्रेस की जानिब से। जी हाँ, हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस और दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाले ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने के बाद कांग्रेस ने पीर के रोज़ मरकज़ी हुकूमत को पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत इस वबा पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम रही और मोदी हुकूमत ने लोगों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। कांग्रेस तर्जुमान ने मोदी हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि रोम जल रहा था, नेरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही मुल्क कोरोना की खाई में जा रहा है, मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने बयान देते हुए कहा कांग्रेस ने कि मेट्रो खिदमात बहाल किए जाने से वबा के मामले फिर बढ़ने का अंदेशा जाहिर करने हो सकता है। हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि मुल्क कम्युनिटी इन्फेक्शन की हालत में पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या फिर ऐसे ही फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा हमला जो है, जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है, कांग्रेस की जानिब से आया हुआ ये बयान। नाज़रीन, दुबई में धोखाधड़ी हुई है। मुलाजिमतों के नाम पर रकम ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। दुबई में पुलिस ने मुलाजिमत के कहा 150 अफराद को कोरोना वायरस की वबा के दौरान में पुरकशिश तनख्वाहों का झांसा देने में मुलव्वस एक फराडिया गैंग को गिरफ्तार कर लिया। दुबई पुलिस के शोबे तफ्तीश फौजदारी जराइम के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमाल सालिम अल जल्लाफ ने बताया है कि गैंग जाली मुलाजिमतों की इश्तिहार सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा था। उसके अरकान दरख्वास्त दहिंदगान को पुरकशिश तनख्वाहें देने का झांसा देते थे। जब लोग इन असामियों पर दरख्वास्त देते तो फिर उनसे भर्ती फीस, टैक्सों, इंटरव्यू का वक्त तय कराने की मुद में रुकू ऐंठते थे। नाज़रीन गिरामी, दुबई पुलिस के ट्विटर पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक कोविड-19 की वबा की वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार हो चुकी है।
इस वजह से मुलाजिमत के कहां अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी तनाजुर में एक गैंग 150 अफराद को फ्रॉड के जरिए लूटने में कामयाब हो गया, मगर दुबई पुलिस ने मुसलसल निगरानी के बाद इस गैंग का सुराग लगा लिया है। इसने दुबई में जाली भर्ती एजेंसी कायम कर रखी थी और इसको एक एशियाई शख्स चला रहा था। इस गैंग की धोखाधड़ी का शिकार होने वाले एक शख्स ने पुलिस को इसके बारे में इब्तिदाई इत्तलात दी थी और इसकी रोशनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम अफराद को और पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। तो नाज़रीन, आप लोग भी होशियार हो जाएं। आज बेरोज़गारी आम है, कहीं ऐसा ना हो कि बेरोज़गारी आम होने की वजह से आप कुछ ऐसे फराडी ग्रोह पर यकीन कर लें, ऐसे ग्रुप जो लगातार सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप में अलग अलग किस्म से जॉब होने के ऑफर्स देते रहते हैं और उसमें दलाली करने वाले मिडिल मैन जिसको कहा जाता है, ऐसे लोग जो है लूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कभी आप इस तरह की रोज़गारी की तलाश में हों और आपको जब यकीन हो कि जो है सारी चीज़ें सही है, तभी जाकर के कोई कदम उठाएं। नाज़रीन, सऊदी अरब से खबर आ रही है, जमाल खाशिकी के कत्ल के हाई प्रोफाइल केस में एक नई तब्दीली रौनुमा हुई। इस नई तब्दीली के मुताबिक सऊदी अरब के महकमे पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस्तिगासा आम ने मकतूल सहाफ़ी जमाल खाशिकी के कत्ल में मुलव्वस 8 अफराद के खिलाफ हतमी फैसला जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 5 मुजरिमों को कत्ल में मुलव्वस होने के जुर्म में अब सजाए मौत के बजाय 20-20 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की लिखारी जमाल खाशिकी को 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था। वो अपनी बीवी को तलाक के कागजात की तकमील के सिलसिले में सऊदी कौंसल खाने में गए थे। इस वक्त वो अमेरिका में मुकीम थे और वहीं से तुर्की आए हुए थे। सऊदी अरब की एक फौजदारी अदालत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में जमाल खाशिकी के कत्ल के जुर्म में 5 अफराद को कसूरवार करार देकर सजाए मौत का हुक्म भी दिया था और मुकदमे में मुलव्वस होने के जुर्म में 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सजा सुनाई थी। सऊदी हुकाम ने कत्ल के इस वाक़े में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 21 शहरियों को गिरफ्तार किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी तहकीकात के बाद उनसे 11 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की थी, मगर अदालत ने इनमें से 3 अफराद को बेकसूर करार करके बरी कर दिया था। लिहाजा ये खबर वाज़ेह तौर पर सामने है कि अब जितने भी कातिल हैं या जिन पर कत्ल के इल्ज़ाम साबित हो चुका है, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि उनको उम्र कैद दी जाएगी। इस तरह सा कुछ बदलाव सामने आया है, जिस पर इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है कि फ़ैसलों को बदला जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, मैं आपको ले चलता हूँ आखिरी खबर की जानिब, और खबर है बिहार से। बिहार के असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले एनडीए के 2 इत्तेहादी जेडीयू और एलजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। जेडीयू की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टोक लहजे में अकेले इलेक्शन लड़ने की छूट दे दी गई है। पार्टी की सेक्रेटरी जनरल केसी त्यागी ने कहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर इलेक्शन की तैयारी कर रही है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एलजेपी से हमारा इत्तेहाद कभी नहीं रहा है और बीजेपी की आला क़यादत ने फैसला लिया है कि बिहार में वो नीतीश कुमार की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू और एलजेपी का भी इत्तेहाद नहीं रहा, ऐसे में अगर एलजेपी अलग इलेक्शन लड़ना चाहती है तो ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। बैकअप नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त बिहार असेंबली इंतखाबात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। सुशांत सिंह की मौत को भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरह उस मौत को सियासी रंग दे करके फ़ायदा उठाना चाहती है। और वैसे भी नीतीश कुमार की हुकूमत बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो चुकी है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की वजह से भी, और जो तरक्याती काम यहाँ नहीं हुए हैं और जिस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़िरक़ावाराना फसादात भी इनके दौरे इख्तिदार में जारी रहा और बहुत सारे अलग अलग फ़ैसले जो बिलखुसूस अक़लियतों के लिए नाकाबिल कबूल थी, इस वजह से भी नीतीश कुमार का जो ग्राफ था वो नीचे आया हुआ है लोगों के पसंदगी की नज़र में। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ही देर में डेली वीडियो न्यूज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत
کا ہے اظہار سیدھی بات